Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Since e-rupee is launched, I feel there is a lot of confusion in the mind of people and candidates. Now you have to understand the very elementary concept. The function of RBI is to issue currency, and it is a well laid down function. So earlier they were used to issue currency in paper form. Now they are issuing the currency in electronic form and paper form. So e-rupee is nothing but a currency. It should be very clear. It is not a replacement of any deposit account. A customer, if he has to maintain an account, it will be maintained in a commercial bank, either in shape of current account, saving account, recurring deposit, fixed deposit. That will continue. So e-rupee is no way replacement of deposit account. This is one. You should be very clear. So there is no threat to banking. I am unable to understand from where it has come that banking will collapse. Entire banking will be done by RBI. No, RBI is issuing agency for currency. So they are not decided that currency will be in two forms. One is physical, that is currency notes. Another is e-currency, that is e-rupee. It is not a replacement of saving account, current account, RD account, FD account, or any sort of account. Those accounts will be maintained. This is one. Second, this is not a form of remittance. Some people are saying, sir, tell us difference between this and UPI, this and RTGS, this and this. These are not comparable things. One is remittance. Remittance means moving money from one place to another, from one bank to another, one account to another account. How it is done? One, if it is within the same bank, it is done by transfer. If it is interbank, it is done either by NEFT, RTGS, IMPS or UPI. And through, if you want to do it through checks, it is done through clearing. So there is no difference or comparison between a e-rupee and any other thing. Everything is different and nothing is replacing any other thing. So there is no threat to banking. Please be very clear. I think from where this confusion has arisen, I am not aware. This is very strange confusion. People are saying banking will die, there will be no banking, there will be no banking job. How it is possible? Any person who is living on this earth has to maintain a bank account to do transactions. Now even the moment the person comes in this world, birth happens of a person, the parents open the account of that child. So there is no threat to banking. Please be clear. I think some people are raising the confusions. They are totally ignorant about banking or they are unaware about the facts if somebody is spreading this type of information. So don't have unnecessary fears. Don't have unnecessary confusions. Be very clear. It is simply a currency. Okay? It is currency. Instead of paper notes, the notes are in electronic form. That's all. Nothing more than that. God bless you all. So on this channel, lot of videos are there that gives you wisdom on banking, finance and economics. Watch 10 to 15 videos per day. Link is available in description. For current affair, I have suggested you a very good source. Link is there. Click the link. You will land up on an app. Download the app and take current year plan. Apply coupon code AA03 to have 10% off. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. जब से ई-रूपी लॉन्च हुआ है, बहुत अजीब से क्वेश्चन आ रहे हैं. कोई कह रहा है ई-रूपी आ गया, बैंकिंग खत्म हो जाएगी. कोई कह रहा है ई-रूपी और यूपीआई में फ़र्क बता दो. कोई कह रहा है ई-रूपी और ये कर दो. अरे ये कहाँ से कन्फ्यूज़न आ गया?
भारतीय रिजर्व बैंक का काम है करेंसी इशू करना, ठीक है। तो वो करेंसी पहले इशू करते थे पेपर करेंसी की शेप में, अब उन्होंने फैसला कर लिया कि पेपर करेंसी भी इशू करेंगे और ई करेंसी भी इशू करेंगे। इट इज़ ओनली करेंसी, ठीक है। जो मुद्रा होती है और जो डिपॉजिट होता है वो अलग अलग चीज़ होता है, इसको कंफ्यूजन मत रखिए। करेंसी है, करेंसी मीन्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको गुड्स खरीदनी है, उसके बदले पेमेंट करनी है, आपको करेंसी चाहिए, उसको करेंसी बोलते हैं। अब जो डिपॉजिट होते हैं वो क्या होता है, एक आदमी है उसका करंट अकाउंट है, एक सेविंग अकाउंट है, एक आरडी अकाउंट है, एक एफडी अकाउंट है, वो तो चलता ही रहेगा ना। जो भी इंसान इस धरती पर पैदा होगा उसको यदि कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो किसी खाते के थ्रू होगा ना। आपको किसी को पैसा भेजना है तो उसके लिए पहले आपके पास अकाउंट होना चाहिए, वहीं से तो पैसे भेजोगे। तो अकाउंट की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जैसे जैसे देश की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी नंबर ऑफ अकाउंट बढ़ते जाएंगे, बैंकिंग को कोई थ्रेट नहीं है। ये बेकार के कंफ्यूजन मत रखो। किसने फैलाया ये कंफ्यूजन मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मतलब टोटली इलॉजिकल चीज़ है ये जो फैल गई है। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं सर क्लैरिफाई करो क्लैरिफाई करो। बैंकिंग को कोई थ्रेट नहीं है ई रूपी से। ई रूपी करेंसी है और बैंकिंग का मतलब है डिपॉजिट अकाउंट और लोन देना। तो डिपॉजिट अकाउंट तो होगा ही होगा ना, डिपॉजिट अकाउंट होगा तभी तो उसमें करेंसी जमा करेंगे आप। तो इसलिए कोई ये एक दूसरे में कंपैरिजन नहीं है, पहली चीज़। सो ई रूपी किसी भी अकाउंट की रिप्लेसमेंट नहीं है। सेविंग अकाउंट चलते रहेंगे, करंट अकाउंट चलते रहेंगे, एफडी चलती रहेगी, आरडी चलती रहेगी, सब कुछ चलता रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब कई लोग कह रहे हैं जी इसके बीच में और आप यूपीआई में डिफरेंस बता दो। ये जो मेथड है, एक है एक जगह से दूसरी जगह हमें पैसा भेजना है, ठीक है, और बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजना है। तो उसके कई तरीके हैं। पहला तरीका सेम बैंक में पैसा भेजना है, तो उसको हम ट्रांसफ़र एंट्री बोलते हैं। एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ट्रांसफ़र एंट्री हो गई। तो ट्रांसफ़र के जरिए पैसा ट्रांसफ़र हो गया खाते से दूसरे खाते। अब एक बैंक है, इस बैंक से दूसरे बैंक के खाता धारक में पैसा जाना है, तो उसका क्या तरीका है। उसका तरीका है या तो एनईएफटी की जाए, या आरटीजीएस की जाए, या इम्स किया जाए, या यूपीआई किया जाए। तो ये मेथड है, ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं है करेंसी की और कोई कंपैरिजन नहीं है इसमें। ये तो आपकी चॉइस है ना, आपको एनईएफटी से पैसा भेजना है, यूपीआई से पैसा भेजना है, आरटीजीएस से पैसा भेजना है, इम से पैसा भेजना है। आपको अलग अलग वर्जन्स अवेलेबल हैं, उसके कुछ कट ऑफ्स हैं, वहाँ पे कंपैरिजन है। यूपीआई और ई करेंसी का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये बेकार की चीज़ों में मत पड़िए। अब कौन लोग फैला रहे हैं, कैसे फैला रहे हैं, कितनी उनकी नॉलेज है, मुझे नहीं पता। आरबीआई बहुत स्पष्ट है, आरबीआई का फंक्शन है करेंसी को इशू करना। उसने ये कहा कि पेपर करेंसी के साथ साथ हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी करेंसी इशू करेंगे। इसमें क्या हो गया, इसमें बैंकिंग को थ्रेट कहाँ से आ गया। तो आपको ये क्लैरिटी रहे, इसीलिए इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पे। 10 से 15 वीडियो रोज के देखिए, आपको पता लगेगा बैंकिंग क्या है, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और इस तरह के कन्फ्यूजनों से आप दूर रहेंगे। क्योंकि अगर आप बैंकिंग में नौकरी तलाश रहे और आप इंटरव्यू में जाते हैं, जितने आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी उतने अच्छे नंबर आपके इंटरव्यू में आएंगे। सारी प्लेलिस्ट फ्री है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो इसको आप देख लीजिए और आगे बढ़िए। करंट अफेयर के लिए भी अच्छा सोर्स मैंने आपको दे दिया, लिंक दे दिया है। उस लिंक को क्लिक करेंगे, एक ऐप पे पहुंचेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, करंट ईयर का प्लान ले लीजिए, कूपन कोड AA03 लगाएंगे, 10% ऑफ आ जाएगा। बेकार के रूमर्स में ना पड़े, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल।